अच्छा बेटा, हम लोग क्योंकि हमने एएस लेवल का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था तो वी kept it slow, but now we will pace up. And those of you who have just joined us, make sure you guys watch all the recordings in this week. And if you have any problems, then of course you can discuss it with me. And if I think most of you have been studying with me in the last session as well. So you guys know the procedure. I will be replying to you on WhatsApp if you have any queries, or we have a query support system as well. मिस सुषमा हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, जैसे पहले था वैसे अभी भी हैं. So if I take longer to reply to your messages, so make sure you send the same message to Miss Uswa as well. तो वो हम उस वक्त देख लेंगे. ठीक है. अभी तक हमने कितनी चीजें क्या क्या पढ़ ली हैं वो जरा मैं आप लोगों को बता देता हूँ. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम तो वही था जो ओ लेवल में था. डेफिनेशन ऑफ एन एटम देखा था. देन दिस डिफरेंट थिंग दैट वी डिस्कस वाज अबाउट द एक्चुअल मास एंड द रिलेटिव मासेस. सिमिलरली द एक्चुअल चार्ज एंड द रिलेटिव चार्जेस. इन back in O level or IGCSE, you were supposed to learn only the relative mass and the relative charges. But now you should know the concept behind the relative mass and relative charge. This is the simplest ratio between the actual masses and the actual charges. ठीक है. It's an easy concept, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें. Then we studied that the electrons, they do revolve around the nucleus in the orbits, but now these orbits or shells जो है उनको हम we call it a principal quantum shell, and within those principal quantum shell we have subshells, and within those subshells we have orbitals. So orbitals are the final regions that we know the electrons are present. And how did we define orbitals? These are the regions around the nucleus where the chances of finding the electrons are maximum. ठीक है. ऑर्बिटल्स के बाद हमने फिर ये देखा था कि every shell now will be called as principal quantum shell, and each principal quantum shell have different number of subshells. We have four types of subshell: S subshell, P subshell, D subshell, and F subshell. First principal quantum shell has only S subshell. Second principal quantum shell has S and P subshell. Similarly, third principal quantum shell has S, P, and D subshell. And fourth principal quantum shell has S, P, D, and F subshell. ठीक है. उसके बाद we saw that each orbital can only hold up to maximum of 2 electrons only, and S subshell has only 1 orbital, P subshell has 3 orbital, D subshell has 5 orbital, and F subshell has 7 orbitals. So the total number of electron S subshell can hold is 2 electrons, P subshell can hold 6 electrons, D subshell can hold 10 electrons, and F subshell can hold 14 electrons. ठीक है. अब जिन लोगों ने ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है तो आई कैन अंडरस्टैंड कि तो उनको तो बहुत ही अजीब सा लग रहा होगा कि ये क्या आ गया अचानक से. बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि कोई ऐसा है आज की क्लास में जिसने एएस केमिस्ट्री अभी तक पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया था. इज देयर एनीवन हु हैव जस्ट स्टार्टेड स्टडीइंग एएस केमिस्ट्री फ्रॉम टुडे? हसन, यू वर देयर इन प्रीवियस क्लासेस यार, क्या हो गया? अभी जस्ट स्टार्टेड टुडे. So you haven't watched the recordings, तो रिकॉर्डिंग देखो ना बेटा. चलो, कोई मसला नहीं है. अभी हमने ना बहुत स्लो पेस पे चीजों को लेके चले थे, तो वी स्टिल हैव टाइम. आई कैन गिव यू दिस वीक where you can watch the recorded lectures, and if you need a quick recap or if you are stuck in some particular concept, then we can schedule a class for you on this coming Saturday. ठीक है. तो उसमें आप डिस्कस कर सकते हो वो चीजें, बट मेक श्योर यू वॉच द रिकॉर्डिंग्स फर्स्ट. अच्छा जी, फिर देन वी लर्न अबाउट रूल्स फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बनाना सीखी, एंड देन वी डिसाइडेड द फिलिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑर्बिटल्स. उसके फिलिंग के हिसाब से हमने एनर्जी लेवल के हिसाब से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई थी. उसके बाद हमने एस सबशेल और पी सबशेल का शेप देखा था, और उसके बाद हमने प्रोडक्ट टेबल इंट्रोड्यूस करवाया था ए लेवल का. वी डिस्कस्ड के एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, और व्हाई दे आर नोन एज नाउ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और डी ब्लॉक क्यों होते हैं. फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक देखा था, और उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी देखे थे. ठीक है.
once you have filled the energy orbitals, then you have to swap the position of 4s and 3d. ठीक है, ये सब हमने देखा था. उसके बाद हमने क्या किया था रूल्स में, फिर हमने हंट्स रूल देखा था, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखा था, एंड आई टोल्ड यू के यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दीज रूल्स नॉर देयर स्टेटमेंट्स, बट यू शुड नो द एग्जीक्यूशन ऑफ दीज रूल्स. तो उसके हिसाब से फिर we made the electronic configuration of around, now we know how to make the electronic configuration of all the elements of a periodic table. Back in grade 11 we could just make the electronic configuration of the first 20 elements of the periodic table. Now you can make the electronic configuration of all the elements of the periodic table, but still we would just be expected to make the electronic configuration up till period 5 only. Okay, period 5 of the periodic table. Then in the last class, we were doing past papers. For 2 classes, we have been doing past papers, right? ऐसा ही था. Now today is the time that we move on to the next topic. Today is today's topic is very theoretical. So I have pre-written lectures in front of me. So if you guys want, you can just jot it down quickly. Otherwise, if you cannot write it down, it will be uploaded on your portals and then you can later make your own notes. ठीक है, जैसे भी आपको करना हो आप कर लेना. Last class, Abrar, we were doing some past paper questions. Okay. Actually, first we have to discuss about the periodicity, that there are some different concepts that you have been studying back in O level or IGCSE, but now we have to give a different meaning to these concepts. मतलब थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़ने जा रहे हैं इस concept को. Actually, in this chapter you have to study about the trends of atomic sizes down the group and across the period. यह आपने पहले भी पढ़ा हुआ था ग्रेड 11 में. If you move down the group, for example, if you take the example of group 1, we have lithium atom. Below lithium we have sodium, then potassium, cesium, francium, and cesium and francium. So down the group we know that atomic size increases, right? Because number of shells increases. And across the period atomic size decreases because number of shells stays constant and nuclear pull increases. लेकिन अब थोड़ा सा और डिटेल में जाके पढ़ेंगे. बेटा देखो, every atom has a nucleus at the center, and around this nucleus we have electrons, and nucleus of every atom is positively charged because nucleus contains two particles, protons and neutrons. Neutrons are neutral and protons are positively charged, so the net charge of the nucleus is always positive, and the electrons which are revolving or orbiting around the nucleus are negative, of course. So which it means the positively charged nucleus hold these electrons around it. Electrons जो nucleus के surrounding में revolve कर रहा है, वो किस वजह से revolve कर रहा है? Because the nucleus is positively charged. I have few questions that I want to ask you guys, जो कि मैंने अभी तक नहीं पूछे थे, लेकिन I think it's time that I should ask you to brain these questions. मुझे बताओ, braining करो अपनी, and tell me one thing. Although, but first just tell me, you guys know nucleus is positively charged due to the presence of protons. Electrons are negatively charged. They are revolving around the nucleus. How come these electrons just keeps revolving around the nucleus when this positively charged proton should be attracting electron towards itself? ये आके कोलाइड क्यों नहीं कर जाता न्यूक्लियस में? पहली बात, कोई इसका आंसर बता सकते हैं मुझे? भाई प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में पॉजिटिव होते हैं, न्यूक्लियस हैज अ पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव बट दे कीप ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस और ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस. व्हाई नॉट दीज इलेक्ट्रॉन्स जस्ट get attracted toward the nucleus and they just collide with the nucleus and then they stay together around the nucleus? ऐसा क्यों नहीं होता? मैं ये क्वेश्चन का आंसर नहीं करूंगा, आप करोगे. ठीक है, हाँ भाई कोई बता रहा है? Centripetal force. Okay, great. Centripetal force. Because electrons, they are revolving around the nucleus. The reason being because the force of attraction between the nucleus and electron is converted into the centripetal force. ठीक है?
फिजिक्स में जैसे आपने पढ़ा होगा ना, इफ यू सी द सोलर सिस्टम, द सन इज एट द सेंटर एंड द डिफरेंट प्लैनेट्स आर ऑर्बिटिंग अराउंड द सन. How come the planets have the energy to revolve around the sun? Because sun and different planets have gravitational forces between them. That is the force of attraction. But this force of attraction is actually converted into centripetal force that is responsible for the circular motion around the sun. Similarly, the electrostatic force of attraction, जब चार्जेस की वजह से फोर्स होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हो ना, तो जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कन्वर्ट हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है. So this electrostatic force of attraction is converted into centripetal force which is responsible to revolve these electrons around the nucleus. ठीक है. एक बात, ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपसे, बट थोड़ा सा तो सोचना है ना माइंड में. एक क्वेश्चन और है जो कि आई विल लीव अप टू यू गाइस एज योर होमवर्क, जो आपने खुद ही बाद में सोच के मुझे बताना है या सर्च करना है, जो भी करना है. मैं इसका आंसर नहीं दूंगा. In the nucleus we have protons which are positively charged and we have neutrons which are neutral. Neutrons पे तो कोई चार्ज नहीं होता ना. So protons, despite all are positive in nature, how come they still stay in the nucleus at the same time? They should be repelling each other and they should come out of the nucleus. But still, despite being both all of these protons positively charged, they must be repelling each other, right? But they still stay in the nucleus. तो इसका आंसर आप लोग मुझे दोगे कि प्रोटॉन्स पॉजिटिव होने के बाद भी न्यूक्लियस में एक साथ कैसे रहते हैं, उनको तो रिपेल करके बाहर आ जाना चाहिए था. ठीक है. ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपने बताना. अच्छा, अभी हमारी बात यहाँ पे हो रही है. You want me to repeat the question? Okay, let me repeat the question for you. In the nucleus, we have protons which are positively charged. Neutrons are neutral. They do not have any charge. If protons which are positively charged, they must be repelling each other, right? But still they stay in the nucleus together. How? They should repel each other and they should come out of the nucleus. But still they stay with each other despite being positively charged. ऐसा क्यों होता है वो आपको बताना है, अहमद. ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं इस बात से. अभी नहीं बताना, नेक्स्ट क्लास में बताना सोच के. अबरार, यू नीड टू बेटा सर्च फॉर इट. ठीक है, दैट्स योर होमवर्क. अच्छा जी, मूविंग ऑन. मैं आपको ये बता रहा था, फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव एनी एटम सोडियम, इफ यू मेक द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम नाउ, इट इज 1s2 2s2 2b6 3s1. Its first shell has 2 electrons, its second shell has 8 electrons, and its valence shell has 1 electron. A sodium atom has 3 shells, right? If you see the structure of a sodium atom, if you draw the simple structure of sodium atom, you will see 3 shells, each of which is filled with electrons. First shell has 1 electron, 2 electrons, second shell has 8 electrons, and the last shell, which is also the valence shell of sodium, has 1 electron. Sodium nucleus is positively charged, right? So the force of attraction any nucleus exerts on its electrons is known as electrostatic force of attraction. और इसको अब हम क्या कहेंगे? Nuclear pull, or this is also known as nuclear attraction. ठीक है, this is known as nuclear pull or nuclear attraction. Nuclear attraction of any nucleus over its electrons is due to positively charged protons. Greater the number of protons in the nucleus, it means greater the force of nuclear pull or nuclear attraction. ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कब होगी? जब प्रोटॉन ज्यादा होंगे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ज्यादा होंगे, राइट? एक तो ये वाली फोर्सेस इन प्ले हैं अभी हमारे पास. Second forces that we would be dealing with is the electronic repulsion. मतलब ये जो फर्स्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, electrons of first shell are negatively charged. Of course, similarly, electrons of second shell are also negatively charged, and the electrons of third shell are also negatively charged. So these electrons must also be repelling each other. If you see the forces on the valence electrons, they must be experiencing the force of repulsion from the electrons of the inner shell. ऐसा ही होगा ना, जो inner shell के electrons हैं वो negatively charged हैं, and they must repel the electrons of the outer shells, क्योंकि वो भी negatively charged हैं.
There is a force of repulsion due to the inner shells of electron on the outer shell electrons. The force of repulsion, ये भी मैं लिखवाऊंगा, पहले सुन लो. The force of repulsion on the outer shell electrons by the inner shell electrons. This phenomena is known as shielding effect, or this is also known as screening effect. ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट. जैसे स्क्रीन करते हैं ना, स्क्रीन या शील्ड किस चीज से कर रहे हैं? न्यूक्लियर पुल से कर रहे हैं. मतलब ये जो न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं. तो ये जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है उन पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं. लेकिन इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना इसके लिए मुश्किल हो रहा है. क्यों मुश्किल हो रहा है? क्योंकि जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, they are exerting the force in the opposite direction to that of the force that is being exerted towards the nucleus. मतलब ये जो outer shell के electrons हैं, they must be experiencing a force towards the nucleus. They are also experiencing a force in the opposite direction to that of the force of the nucleus. वो किस वजह से आ रही है? inner shell के electrons की वजह से आ रही है, जिसको हम कह रहे हैं shielding effect. ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि अभी हमें आगे यूज करने हैं. पहले हम इनको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं. पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज न्यूक्लियर पुल, न्यूक्लियर पुल क्या होता है या न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होती है. उसके बाद हम लोग शील्डिंग इफेक्ट को देखते हैं, और फिर इन फोर्सेस को यूज करते हुए वी हैव टू डेवलप फ्यू ऑफ दी कॉन्सेप्ट्स, और कुछ अंडरस्टैंडिंग्स हमें डेवलप करनी होंगी. लेकिन पहले हम ये फोर्सेस के नाम वगैरह लिख लेते हैं. ठीक है, चलो पहले तो आप लोग शील्डिंग इफेक्ट लिख लें. शील्डिंग इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट. शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? इट इज अ रिपल्जन ऑफ द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स. फॉर एग्जांपल, इफ वी सी अ मैग्नीशियम एटम, the valence shell electrons of magnesium must be experiencing a force towards the nucleus, right? देखो, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल के क्या सारे शेल के इलेक्ट्रॉन्स दे एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. लेकिन ये जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, वो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक फोर्स ऑफ रिपल्जन भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं. और वो जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है, वो काउंटर करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को. मतलब अगर मैं जो बिल्कुल इनर मोस्ट शेल है, जो फर्स्ट शेल है, उस पर अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगी या जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है उन पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन किस पे ज्यादा होगी? उन इलेक्ट्रॉन्स पे जो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है. और वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से दूर है, एक तो उनका डिस्टेंस ज्यादा है, ऑब्वियसली उन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम लगेगी. सेकेंडली, देयर इज अनदर फैक्टर इन प्ले. वो क्या है? शील्डिंग इफेक्ट. क्योंकि ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे एक अपोजिट फोर्स लगा रहा है. सही है, तो पहले तो आप लोग शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन देख लें. अगर किसी को लिखनी है तो लिख लें, अगर नहीं लिखनी तो लेट मी नो, ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं. मैं न्यूक्लियर अट्रैक्शन की आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूं. देखो भाई, न्यूक्लियर अट्रैक्शन लिख लो पहले. न्यूक्लियर अट्रैक्शन दिस इज ऑल्सो फेमस विद द नेम ऑफ न्यूक्लियर पुल. ठीक है, न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाता है उसको हम न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी कहते हैं, उसको न्यूक्लियर पुल भी कहते हैं. ठीक है, ये क्या होती है? दिस इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन on the electrons by the positively charged nucleus. Nucleus is positively charged due to positively charged protons, right? Why nucleus is positively charged? Because it has positively charged protons.
राइट। अच्छा, if nucleus has greater number of protons, न्यूक्लियर पुल इज ग्रेटर। जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतना ज्यादा न्यूक्लियर पुल या न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगी फॉर दैट पर्टिकुलर एटम। फॉर एग्जांपल, if we compare a sodium atom and a magnesium atom, sodium has an atomic number of 11, magnesium has an atomic number of 12. Sodium has how many protons? Sodium has 11 protons, whereas magnesium has how many protons? Magnesium has 12 protons. तो किसका न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा या पॉजिटिवली चार्ज होगा? मैग्नीशियम का। तो न्यूक्लियर पुल किसका ज्यादा होगा? मैग्नीशियम न्यूक्लियस विल एक्सर्ट अ ग्रेटर न्यूक्लियर पुल ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू द न्यूक्लियस ऑफ सोडियम। ठीक है, ये बात क्लियर है? मैग्नीशियम एटम, द न्यूक्लियस ऑफ मैग्नीशियम एटम हैज अ ग्रेटर न्यूक्लियर पुल। ठीक है, बस मैं इतनी सी बात कर रहा हूं, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है, राइट गाइस? क्लियर है? ओके, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ना। अच्छा जी, नाउ मूविंग बैक टुवर्ड्स शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या है? शील्डिंग इफेक्ट इज द रिपल्जन ऑफ द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, न्यूक्लियर पुल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो शील्डिंग है वो जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करेंगे। अच्छा, आप ये भी तो पूछ सकते हो कि व्हाई आर यू सो इंटरेस्टेड इन द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स ओनली? क्या इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे शील्डिंग नहीं है? मतलब जो सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, क्या उनको फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स रिपेल नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना। ठीक है, लेकिन हम आउटर शेल में क्यों इतना इंटरेस्टेड हैं? भाई देखो, आउटर शेल में इसलिए ज्यादा इंटरेस्टेड है बिकॉज व्हेनेवर एटम ऑफ एनी एलिमेंट रिएक्ट्स, तो कौन से इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं? आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स या इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स? दोज आर द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स दैट आर इन्वॉल्वड इन अ केमिकल रिएक्शन। दैट्स व्हाई वी आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन द बिहेवियर ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए हम उसको पकड़ना चाह रहे हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्जन ओवर द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे दो तरह की फोर्सेज इन्वॉल्व हैं, एक तो न्यूक्लियर पुल है बाय द न्यूक्लियस, एंड देयर इज अनदर फोर्स व्हिच इज द शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट कह रहे हैं इसको, वो क्या है? रिपल्जन ऑफ द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इफ यू सी अ मैग्नीशियम एटम, इट हैज अ न्यूक्लियर अट्रैक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 12 प्रोटॉन्स, राइट? और शील्डिंग इफेक्ट इसका किस वजह से? इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। नाउ इफ यू कंपेयर अ मैग्नीशियम एटम एंड अ कैल्शियम एटम, a calcium atom has more protons, right? It has 20 protons, and magnesium atom has 12 protons. So definitely the nuclear pull of a calcium nucleus is greater as compared to the nuclear pull of magnesium. सही है? What about shielding effect? Shielding, वैलेंस शेल में दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो शील्डिंग इफेक्ट किस पे ज्यादा है? शील्डिंग इफेक्ट कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा है। उसका रीजन क्या है? इफ यू सी द इनर शेल्स ऑफ मैग्नीशियम, अ मैग्नीशियम एटम हैज 2 इनर शेल्स, whereas a calcium atom has 3 inner shells. मतलब all the electrons of those 3 inner shells are exerting the repulsion on the valence electron. मतलब जो shielding effect है वो ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि इनर शेल इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स क्यों ज्यादा है? क्योंकि इनर शेल ज्यादा है और सारे शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स है। तो शील्डिंग इफेक्ट directly depends upon number of shells. If any atom has greater number of shell, it means its valence electron experiences a greater shielding effect. सही है? And nuclear attraction depends upon number of protons. If number of protons increases, nuclear attraction increases, and if number of shells in an atom increases, it means shielding effect increases. Shielding effect, we refer shielding effect to the outer shell electrons. क्या outer shell पे क्या हो रहा है? Yes, Abhiha, actually shielding effect happens on all the shells which are present apart from the first shell. जितनी भी shells हैं उन पे shielding effect आ रहा है, but we are only interested in the shielding effect of the outer shell electrons. And I just told you why outermost shell electrons are very important, because those are the electrons which involve in the chemical reaction. ठीक हो गया? तो shielding effect stronger
स्ट्रॉन्गेस्ट शील्डिंग इफेक्ट किस पे लग रहा होगा? आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे, क्योंकि उनपे रिपल्जन इसलिए ज्यादा है क्योंकि इनर शेल के सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर उसको शील्ड कर रहे हैं, उसको रिपेल कर रहे हैं. फर्स्ट शेल डज नॉट ऑब्जर्व द शील्डिंग इफेक्ट बिकॉज फर्स्ट शेल के अंदर कोई शेल नहीं है ना उसको शील्ड करने के लिए. शील्ड करना क्या है? न्यूक्लियस से दूर लेके जाना. अब अगर आप कहो कि सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे भी तो फोर्स ऑफ रिपल्जन लगा रहे होंगे, यस लगा रहे होंगे, लेकिन वो फोर्स ऑफ रिपल्जन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ही होगी, क्योंकि ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स जब रिपेल करेंगे नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स को, तो देखो नीचे वाला शेल, आई होप यू गाइस कैन सी माय वीडियो, इफ यू सी माय हैंड्स, तो जो नीचे वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो और नीचे जाएंगे, ऊपर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स और ऊपर जाएंगे, तो जो फर्स्ट शेल है वो तो और क्लोजर हो जाएगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, right? So if we see the outer shell electrons, it is experiencing shielding from the three inner shells in case of magnesium. In case of calcium, it is experiencing shielding from the three inner shell electrons. In case of magnesium, they are only experiencing shielding due to two inner shell electrons. तो shielding ज्यादा किस में होगी? कैल्शियम में ज्यादा होगी. देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का फिर रीजन भी डिफरेंट हो जाता है ना. सेंट्रीपिटल फोर्स तो आपकी आ रही है न्यूक्लियर पुल की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स व्हेन द एटम इज फॉर्म्ड इट मींस इलेक्ट्रॉन्स वर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड व्हेन they started experiencing nuclear attraction, that force was actually perpendicular to the direction of motion of an electron, so that's why there is a constant change in the direction of electron. ठीक है, तो वो सर्कुलर मोशन में मूव करना शुरू हो गए. तो हाँ, सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यूज डिफरेंट होंगी ऑफ कोर्स अगर न्यूक्लियर पुल डिफरेंस है. फिर रेडियस भी आ जाएगा. ठीक है, हम फिर वो मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखना पड़ जाएगा उसको समझाने के लिए, तो हम उस डिटेल में जा नहीं रहे अभी. समझ आ गया शील्डिंग क्या है और न्यूक्लियर पुल क्या है. अब इसको यूज करते हुए ना एक्चुअली हमें कुछ भी नहीं करना, हमें बस जो है ना पीरियोडिसिटी पढ़नी. पीरियोडिसिटी बेसिकली क्या होती है कि we have to compare the sizes of atoms across the period and down the group. Last shell shouldn't need repulsion if it gets centripetal force. देखो all the electrons are experiencing electrostatic force of repulsion that has been converted into its centripetal force, क्योंकि वो मूव कर रहे थे ना इलेक्ट्रॉन्स. तो लेकिन ओरिजिनली वो आई कहां से? सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स. न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज. वो फोर्स कन्वर्ट हुई है किसमें? सेंट्रीपिटल फोर्स में. सही है, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है. अगर वो मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हटा दूंगा तो फिर इलेक्ट्रॉन तो सीधा निकल जाएगा. ठीक है, वो न्यूक्लियस में कोलाइड भी नहीं करेगा, सीधा निकल जाएगा, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी है ना ऑलरेडी, वो मूव कर रहा है, रुका हुआ नहीं एक जगह पर. चले आगे हुजैफा. अच्छा भाई, पीरियोडिसिटी में अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई डाउन द ग्रुप किसी भी एटम, किसी भी ग्रुप को ले लो, ठीक है, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप पहले देखते हैं, फिर अक्रॉस द पीरियड देखते हैं. लेट्स से अगर आप ग्रुप 1 की बात कर रहे हो, तो लिथियम इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1. lithium has how many number of shells? Lithium atom has 2 shells, right? If you see sodium atom has 3 shells. तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा? किसका एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा, लिथियम का या सोडियम का? इट्स वेरी कॉमन कि भाई सोडियम के पास नंबर ऑफ शेल ज्यादा है तो उसका साइज जो है वो बड़ा होगा. पोटेशियम एटम के पास इट हैज 4 नंबर ऑफ शेल्स, सो इट्स साइज शुड बी इवन बिगर देन द सोडियम एटम. देखो अगर मैं इनके साइजेस बनाना स्टार्ट करूं तो लिथियम एटम हैज 2 शेल्स ओनली, सोडियम एटम हैज 3 shells, potassium atom has 4 shells. तो साइज जो है वो आपका बड़ा होता जाएगा ना. अच्छा, लिथियम के पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है इट हैज 3 प्रोटॉन्स, राइट? लिथियम एटम हैज ओनली 3 प्रोटॉन्स. Sodium atom has 11 protons. Potassium atom has 19 protons. If you keep moving downwards, after that you have rubidium atom. It has 37 protons. तो न्यूक्लियर पुल तो इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप. अगर न्यूक्लियर पुल इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियस को चाहिए कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा करीब रखे. पोटेशियम के न्यूक्लियस को चाहिए कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा न्यूक्लियर पुल लगाए और करीब करीब रखे.
लेकिन वो करीब करीब रखना तो चाहता है लेकिन रख नहीं पाता। क्यों नहीं रख पाता? एक तो जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो डिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का। जब जब भी आप किसी एटम के रेडियस की बात करोगे ना, तो डिस्टेंस पता है हम कहाँ से देखेंगे? डिस्टेंस हम देखते हैं हमेशा सेंटर ऑफ द एटम से। सेंटर ऑफ द एटम क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से वैलेंस शेल तक का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस कहलाता है एटॉमिक रेडियस। इस डिस्टेंस को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। देखो भाई, नेचुरल बात है, अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो रेडियस तो बढ़ेगा ना, साइज ऑफ एटम तो बढ़ेगा। लेकिन न्यूक्लियर पुल भी बढ़ रहा है, लेकिन न्यूक्लियर पुल जो है ना वो हार जाता है। न्यूक्लियर पुल इन फ्रंट ऑफ द इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, जो साइज बढ़ता है न्यूक्लियर पुल, ऐसा नहीं होता कि पोटेशियम का न्यूक्लियर पुल ज्यादा है वो अपने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पकड़ के करीब रखेगा, वो नहीं रख पाता। दो रीजन है इस बात के। एक रीजन तो ये है कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़े, ऑब्वियसली उनको भी अपनी जगह चाहिए। सेकेंडली, विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स देयर इज ऑल्सो एन इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग भी तो बढ़ रही है साथ साथ, ठीक है? तो जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स है उनकी रिपल्जन भी तो बढ़ी है आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स पे। तो ऑल्दो न्यूक्लियर पुल इज इंक्रीजिंग, बट देयर इज एन इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। तो नंबर ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल itself increases the size, and also the increase in shielding effect also increases the size, क्योंकि जब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इनर शेल के इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे रिपल्जन लगाएंगे तो वो शेल्स और दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है? So if they ask you about the trend of atomic radius down the group, its explanation is very simple. You just have to write atomic radius or size increases down the group. That is for 1 mark. देखो, जब आपके पास क्वेश्चन आता है ना, this question usually comes for 3 marks or at most 4 marks. But usually this question has come for 3 marks only. 4 marks का बहुत रेयर दिया है इन्होंने। But the answer we are writing right now is for 4 marks. हम 4 marks के लिए पूरा आंसर लिखेंगे। It doesn't matter कि 3 marks के लिए आया ये क्वेश्चन या 4 marks के लिए आया, क्योंकि ये क्वेश्चन चेंज नहीं होता एग्जाम में, ये सेम आता है। Explain the trend of atomic radius down the group, and this trend is same for all the groups of the periodic table. For all 18 groups of the periodic table, this trend is same. The explanation is same, ठीक है? Doesn't matter if this question comes for 3 marks or 4 marks, you should write all of these points. आपको कुछ कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट इतनी लाइंस होती हैं। अब मैं आपको 4 मार्क्स के लिए अलग याद नहीं करवाऊंगा, 3 मार्क्स के लिए अलग अलग याद नहीं करवाऊंगा, इतना बड़ा काम नहीं करना है हमें। हमें एक ही आंसर बनाना है जो हमें सारे क्वेश्चंस में फिट करना है इस तरह के, ठीक है भाई? देखो, so whenever he asks you to explain the trend of atomic radius down the group, तो आपने जो है ना पॉइंट फॉर्म में पहली बात तो आंसर नहीं लिखना। दिस क्वेश्चन इज फॉर पेपर 2। पेपर 2 में ये क्वेश्चन आएगा तो आप पॉइंट फॉर्म में आंसर नहीं लिखोगे, आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे। हमने यहाँ पे पॉइंट फॉर्म में इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप इजीली इसको याद कर सको, ठीक है? आपके लिए आपको याद रहेगा कि मुझे इसके 5 पॉइंट्स याद करने हैं, इसलिए मैंने पॉइंट फॉर्म में लिखा है। इन एग्जाम मेक श्योर यू विल राइट इट इन द पैराग्राफ फॉर्म। द फर्स्ट पॉइंट इज जस्ट द स्टेटमेंट एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है भाई? बट व्हाई? Although nuclear attraction increases due to increase in number of protons, nuclear attraction तो increase हो रही है, उनको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को जोर से पकड़ के करीब लेके आ जाए, but the number of shells also increases, which also increases the shielding effect. देखो, अब लड़ाई होगी किसमें? न्यूक्लियर पुल इंक्रीज हो रहा है। If we see sodium has a greater nuclear pull than lithium, तो सोडियम न्यूक्लियर पुल ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को वो ज्यादा करीब पकड़ के रखना चाहिए, लेकिन नहीं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से शील्डिंग भी इंक्रीज हुई है। लेकिन जीतता कौन है? क्या इंक्रीज इन न्यूक्लियर पुल जीतेगा या इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट जीतेगा? जीतता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट हैज अ मोर सिग्निफिकेंट इफेक्ट। अब आपने ये नहीं लिखना कि शील्डिंग इफेक्ट विंस, हम या तो वर्ड यूज करते हैं द इफेक्ट ऑफ शील्डिंग इज मोर सिग्निफिकेंट, और अदरवाइज फिर हम लोग या तो नेट न्यूक्लियर पुल की बात करेंगे। भाई देखो, जब आप फिजिक्स में फोर्सेस को पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव एन ऑब्जेक्ट and it has 10 Newton force acting on the right hand side and 5 Newton force acting on the left hand side. So how do you tell कि what is the resultant force? Resultant force कहते हो ना, या उसको net force कहते हो। केमिस्ट्री में इसको हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन। इफेक्टिव मतलब रिजल्टेंट न्यूक्लियर अट्रैक्शन, मतलब न्यूक्लियर अट्रैक्शन को कोई चीज कैंसिल आउट कर रही है, वो क्या है? शील्डिंग इफेक्ट कैंसिल आउट कर रहा है।
तो आप केमिस्ट्री में रिजल्टेंट का वर्ड भी यूज कर सकते हो, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर केमिस्ट्री इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीजेस। ठीक है, और इफेक्टिव इंस्टेड ऑफ राइटिंग न्यूक्लियर अट्रैक्शन यू कैन ऑल्सो राइट द वर्ड न्यूक्लियर पुल। ये भी आपको एमएस में मार्किंग की में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, so atomic radius increases down the group, although nuclear attraction increases due to increase in number of protons, but number of shells also increases, which increases the shielding effect. Hence, effective nuclear attraction decreases. ठीक है, अब आपने इन बस पॉइंट्स को फुल स्टॉप लगा लगा के एक साथ लिख देना है, पैराग्राफ बन जाए। ठीक है, कंजक्शंस की कोई जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश नहीं है। ठीक है, ये मत घबराना कि पॉइंट्स को कनेक्ट कैसे करना है, डॉट डॉट लगा के लिख दो, फुल स्टॉप लगा के आपका पैराग्राफ बन गया। ठीक है भाई, सो फार सो गुड। एनीथिंग यू गाइस नीड टू आस्क? Beta, I would recommend, even if you haven't studied the initial lectures, do not leave the class. आप जो है वो अभी इस क्लास को सुन लें। इस क्लास का जो कनेक्शन है वो लास्ट क्लासेस से इतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत माइंड में जाता रहेगा ना, जब लेक्चर्स देखोगे पीछे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा समझना। अच्छा भाई, नाउ ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड। Now it is a bit tricky to deal with it across the period। तो हमें कोई एग्जाम्पल लेनी पड़ेगी ना किसी पर्टिकुलर पीरियड की, और जो एग्जामिनर का फेवरेट पीरियड है वो है पीरियड 3। पीरियड 3 स्टार्ट्स फ्रॉम सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन and it goes up till argon. If you see the period 3 of the periodic table and if you make the electronic configuration of all the elements in period 3, sodium's electronic configuration ends at 3s1. Okay, it has 3 shells. If you just make the shell electronic configuration, you can just write it like this. This is 2, 8, 1. Magnesium is 2, 8, 2. However, you know that now if we have to make the electronic configuration using subshells, it should be 1s2, 2s2, 2p6 and 3s2. For aluminium, this is 2, 8, 3. For silicon, this is 2, 8, 4. For phosphorus, this is 2, 8, 5. For sulfur, this is 2, 8, 6. So if you notice, all the period 3 elements have equal number of shells. ठीक है, number of shells तो same है. So what do you expect? What should be the trend of atomic radius across the period? जरा बताओगे, आपको क्या लगता है कि atomic radius across any particular period of periodic table should increase or decrease or should stay the same? Of course, you must expect that the atomic radius should stay same because number of shells are same. जब number of shells सारे same है तो atomic radius भी same रहना चाहिए, increase तो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा देखो, नंबर ऑफ शेल सेम है तो मुझे ये बताओ शील्डिंग इफेक्ट। देखो, एटॉमिक रेडियस दो चीजें अफेक्ट कर रही हैं। फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द एटॉमिक रेडियस, वी हैव टू फैक्टर दैट इज अफेक्टिंग द एटॉमिक रेडियस। फैक्टर्स अफेक्टिंग atomic radius, we have two factors, nuclear pull. Actually we have 3 factors but 2 of the factors are interrelated. If I say number of shells, then increase in number of shells, अगर number of shells increase करोगे तो shielding भी तो increase होगा ना। तो these 2 factors affect the atomic radius। मतलब number of shells बढ़ाओगे shielding बढ़ेगा by default, और atomic radius बढ़ेगा number of shells बढ़ाने से या shielding बढ़ाने से। The second factor is the nuclear attraction or nuclear pull, and nuclear pull depends upon number of protons। मतलब nuclear attraction कब बढ़ेगी, जब आपके न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा होंगे। ठीक है, if nuclear attraction increases, atomic radius should decrease, right? Because if nucleus is powerful, it will try to keep its electron closer to it, so the atomic radius should decrease. If number of shells increases, naturally if there are more number of shells, they will occupy the larger volume, so they will stay more away from the nucleus, and plus with the increase in number of shells, shielding effect also increases,
So the electrons of the outer shell, they move even further away from the nucleus. So both of these factors are interrelated. Number of shells or shielding is interrelated. Number of shells increasing, shielding effect increasing, matlab atomic radius will increase. If nuclear attraction is increasing, okay, it means it is increased by increasing number of protons, right? तो अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है प्रोटॉन इंक्रीज होने की वजह से, तो एटॉमिक रेडियस शुड डिक्रीज. तो इसको अगर मैं मैथमेटिकली समराइज कर दूं ना आप लोगों के लिए, लेट्स जस्ट से इन नंबर ऑफ शेल्स, यहाँ पर लिख लेते, number of shells is directly proportional to, और नंबर ऑफ शेल्स के साथ शील्डिंग भी लिख लेते हैं ना, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस तो एटॉमिक रेडियस मस्ट इंक्रीज, या एटॉमिक रेडियस को आप एटॉमिक साइज भी कह सकते हो, ठीक है, एक ही बात है. बट इफ न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेस, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होगा या एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया इसके. सही है. अब आप मुझे दोबारा से बताओ कि अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है. क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं फ्रॉम सोडियम टू आर्गन. सोडियम का 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, एल्यूमिनियम का 13 है, सिलिकॉन का 14 है. क्या न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है अक्रॉस द पीरियड? ऑफ कोर्स इंक्रीज हो रही है. न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है. क्या शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है या नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं? नो, देयर इज नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, क्योंकि सारे पीरियड 3 के है ना, तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज नहीं हो रहा. न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है, तो सिर्फ एक फैक्टर इंक्रीज हो रहा है जो कि एटॉमिक रेडियस को छोटा करने पर रिस्पॉन्सिबल है. अगर आप शील्डिंग इफेक्ट सेम है तो उसकी वजह से तो एटॉमिक रेडियस पे कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, नंबर ऑफ शेल सेम है ना. लेकिन न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है, तो एटॉमिक रेडियस ने क्या होना है, डिक्रीज होना है. तो अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा. समझ आई बात? लिखोगे कैसे इसको केमिस्ट्री में, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस बिकॉज न्यूक्लियर अट्रैक्शन या न्यूक्लियर पुल इंक्रीज हो रहा है. और वो क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहा है. दैट्स इट. बट शील्डिंग इफेक्ट स्टेज कांस्टेंट. ठीक है, अगर मैं इसको आपको समराइज करके लिखवा दूं, जैसे हमने डाउन द ग्रुप लिखा है, इसी तरह अक्रॉस द पीरियड भी लिख लेते हैं. एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड as nuclear attraction increases due to increase in number of protons, but number of shells stays same and shielding effect stays same. सही है. अब समझ आई है बात गाइस? हम्म. यस हसन, इट्स कंफ्यूजिंग, लेकिन आप अगर बार बार रिवाइज करोगे ना इसको, तो फिर आपको याद हो जाएगा ये. चलो एक काम करते हैं ना, अभी तो हम इसका ग्राफ भी बनाते हैं, ग्राफ पे ट्रेंड देखते हैं. ट्रेंड ऑफ atomic radii. Radii is the plural for radius. Down across the period देखते हैं पहले. ट्रेंड देखने के लिए let's draw a Cartesian with x-axis labeled as number of protons and y-axis labeled as
एटॉमिक रेडियस। ये आगे भी बहुत बार पढ़ना है अभी। लेट्स से पीरियड 3 की एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, phosphorus, sulfur, chlorine, and argon. So what do you expect? If let's say sodium has the size of this, मैं वैल्यू नहीं लिख रहा, मैग्नीशियम का उससे कम होगा, एल्यूमिनियम का उससे कम होगा, सिलिकॉन उससे कम होगा, फॉस्फोरस उससे कम होगा, then we have sulfur, then chlorine and argon. So the trend of atomic radius should be something like this, right? समझ आती है बात? आपको ये ग्राफ समझ आना चाहिए, मतलब वैल्यूज के साथ नहीं, बस एक ट्रेंड आपको समझ आना चाहिए कि जनरल ट्रेंड क्या बनेगा एटॉमिक रेडियस का। लेट मी शो यू वन मोर थिंग। हसन मैं दिखा रहा हूँ ग्राफ आपको। देखो भाई, इफ वी जनरली सी डाउन द ग्रुप, अच्छा ये हैंडआउट्स जो है मैंने आपको पोर्टल पे अपलोड करवा दिए हैं, तो मेक श्योर कि आप वहां से भी इनको खोल के पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। बुक्स मैंने आपको बता दी थी, अगर बुक से पढ़ना चाहो तो बुक से पढ़ सकते हो। तो इफ वी सी द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप, तो साइज इंक्रीज होता है और अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीज होता है। ठीक है, रीजन हमने लिख लिए हैं, इसमें भी वही रीजन लिखे हुए हमने समराइज करके लिख लिया है। ठीक है, अब पूरे प्रोडक्ट टेबल में अगर देखोगे तो ग्रुप 1 में डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, ग्रुप 2 में भी इंक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन अक्रॉस द पीरियड देखोगे तो देखो फर्स्ट पीरियड में लिथियम बड़ा है, बेरिलियम छोटा है, बोरॉन और छोटा है, कार्बन और छोटा है, नाइट्रोजन और छोटा है, तो सेकंड पीरियड का था। थर्ड पीरियड में भी कुछ ऐसा ही है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। फोर्थ पीरियड में पोटेशियम बड़ा है, कैल्शियम छोटा है, स्कैंडियम छोटा है। अच्छा, स्कैंडियम से यहां तक ये जो डी ब्लॉक है ना, डी ब्लॉक तो हम एएस में इसके ट्रेंड पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, इनके ट्रेंड में कुछ एक्सेप्शंस ही एक्सेप्शंस भरी हुई हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी देखा था, क्रोमियम का 4s1 होता है, कॉपर का 4s1 होता है, तो इनको तो हम देखेंगे नहीं। अगर इनको आप गौर से देखो तो इनके साइजेस जो है ना वो नियरली सेम है, इनको तो भूल जाओगे। ठीक है, तो as far as your AS level is concerned, across the period atomic size decreases। ठीक है जी। अब अगर मैं एटॉमिक साइज बना रहा हूं ना, तो पता है इसको हम आगे भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक साइज जो मैंने ट्रेंड बनाया है ना, उसमें बेटा मैंने ना सो पीरियड 3 की अगर हम बात करें तो पीरियड 3 में हमने सोडियम देखा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। क्लोरीन पे ना हम रुक जाएंगे। आर्गन हमने अभी फॉर द सेक ऑफ ट्रेंड बना दिया था, बट एक्चुअल में अगर आप मुझसे पूछो ना कि डू वी हैव द रेडियस ऑफ आर्गन, यस ऑफ कोर्स वी हैव मेजर्ड द रेडियस ऑफ आर्गन, बट द प्रॉब्लम इज कि आर्गन का अगर मैं साइज अगर आपको बताऊं ना, तो आर्गन का साइज जो है ना वो सोडियम से भी ऊपर होता है। अब यहाँ पे ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये बेसिकली हमारी मेजरमेंट फ्लॉ है। हम लोग आर्गन का एटॉमिक साइज मेजर ही नहीं कर पा रहे हैं। अब हम लोग किसी भी एटम का एटॉमिक साइज मेजर कैसे करते हैं भाई? आपको क्या लगता है एटम जो है वो इतने छोटे होते हैं? आपको क्या लग रहा है कि मैंने एक एटम को उठाया, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज लगाया और मैंने एटॉमिक रेडियस मेजर कर लिया? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर हम एक्चुअली एटॉमिक रेडियस मेजर कर कैसे रहे हैं, पहले तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी ना, फिर आप समझ पाओगे कि अगर हम आर्गन का एटॉमिक रेडियस मेजर ही नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे। रीजन क्या है? देखो, एटॉमिक रेडियस मेजरमेंट आपको अगर आप मुझसे पूछो कि इसके बारे में क्या इतनी डिटेल में हमें पढ़ना है, तो आई वुड से कि भाई नहीं पढ़ना। मैं आपको ओरली बता देता हूँ, आप वो सुन लो, वो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर यू।
क्योंकि उसका क्वेश्चन टेस्ट नहीं करेगा, बट यू शुड रिमेंबर के वी डू नॉट इंक्लूड द रेडियस ऑफ आर्गन इन आवर ट्रेंड। नोबल गैसेस के रेडियस को हम ट्रेंड्स में इंक्लूड नहीं करते। अब रीजन क्या है उसका, देखो भाई, अगर मैं फॉर एग्जांपल सोडियम एटम का रेडियस मेजर कर रहा हूँ, तो सोडियम एटम का रेडियस कैसे मेजर करेंगे, वी हैव मेनी सोडियम एटम्स, क्योंकि एक सोडियम एटम तो मेरे हाथ लगना नहीं है, तो इट मींस वी विल हैव अ लेयर ऑफ सोडियम एटम जिसमें बहुत सारे सोडियम के एटम्स एक साथ रखे हुए होंगे। अगर आप ओ लेवल फिजिक्स का या आईजी फिजिक्स का एटीपी रिकॉल करो, तो एटीपी में अगर आपको कहा जाता था यू हैव मेनी टेनिस बॉल्स, और उन टेनिस बॉल्स का आपको अगर रेडियस मेजर करना है तो आप वो कैसे मेजर करते थे, यू यूज टू हैव मेनी टेनिस बॉल, लाइक 4 to 5 या 10 टेनिस बॉल्स आप जो है वो एक साथ रखते थे। क्वेश्चन एटीपी में मिलेगा ना ओ लेवल का ऐसा। और क्या करते थे, यू यूज टू हैव सेट स्क्वायर्स, सेट स्क्वायर से इनको अलाइन करते थे लाइक दिस। याद है किसी को, करा है किसी ने कि ऐसा एटीपी का क्वेश्चन? ठीक है। और आप इन सारी बॉल्स का जो है वो जो टोटल डिस्टेंस बन रहा है वो मेजर करके, जो भी यहां से लेके यहां तक इनका डिस्टेंस आ रहा है उसको आप क्या करते थे, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ बॉल, सो यू यूज टू गेट द डायमीटर ऑफ वन बॉल। एक बॉल का डायमीटर आ जाएगा, उसको भी डिवाइड बाय 2 करोगे तो रेडियस आ जाएगा। एटम्स को भी तो हम स्फेरिकल मान रहे हैं ना, तो उसका भी रेडियस हम लोग ऐसे मेजर कर रहे हैं। हम लोग पूरी लेयर का एक साइज ले रहे हैं और उसमें वी हैव, अब उसमें कोई 5 या 10 एटम्स नहीं होंगे, देयर विल बी एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम, 1 मोल 2 मोल उतने होंगे, तो बिलियंस एंड बिलियंस में होंगे। यू गाइस नो द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो, तो हम उससे डिवाइड कर देंगे, मैथ तो सेम लग रही है। अच्छा, अब जो बॉल्स हैं टेनिस बॉल्स, वो तो एच टू एच कनेक्ट होती है ना, बॉल्स में तो ऐसा नहीं होता कि एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाए। क्या होता है, नहीं होता। एटम्स के तो जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ शेल जो होते हैं वो ओवरलैप करते हैं। एक तो कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसमें तो ओवरलैपिंग रीजन होता ही होता है, लेकिन एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी कोई डेफिनेट बाउंड्री थोड़ी होती है कि एक दूसरे से आगे टच होके रुक जाएंगे। वो तो उनके जो शेल्स होते हैं वो आपस में थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे होते हैं। एनर्जी शेल्स होते हैं ना, एम्प्टी स्पेस होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, तो दे ओवरलैप अ बिट टू ईच अदर। तो अगर मुझे एक बात बताओ, अगर एटम्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो और अगर मैं इस तरह से इनका डिस्टेंस ले रहा हूं और फिर उसको डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स कर रहा हूं, तो क्या ये ट्रू रेडियस आ रहा है? ये रेडियस कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए था, यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए था, लेकिन हमें जो रेडियस मिल रहा है वो रेडियस कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, क्योंकि वो ओवरलैपिंग रीजन की वजह से कुछ ओवरलैपिंग रीजन काउंट ही नहीं हो पा रहा। समझ आती है बात ये वाली? तो हम लोग जो रेडियस मेजर कर रहे हैं, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, सब एटम्स क्लोज क्लोज हैं। लेकिन आर नोबल गैसेस में क्या है, आर्गन के क्या एटम्स एक साथ रहते हैं? नहीं, वो तो एक तो बॉन्ड भी नहीं बनाते भाई। मेटल्स में मेटेलिक बॉन्ड होता है, मेटल पॉजिटिव आयन दे स्टे टुगेदर, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम तक मेटल हो गया। सिलिकॉन क्या है, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा सिलिकॉन एटम्स, और सिलिकॉन के आगे फास्फोरस सल्फर क्लोरीन ये सब कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, आर्गन बॉन्ड ही नहीं बनाता। जब आर्गन के एटम्स बॉन्ड ही नहीं बनाते तो वो क्या एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे? नहीं करेंगे। जब आर्गन का रेडियस निकालने जाओगे तो आर्गन एटम्स तो एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे होंगे, और जब उसका रेडियस निकालोगे तो फिर उसको डिवाइड करोगे तो वो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से यहाँ तक आएगी। मतलब आप इसमें आर्गन का रेडियस ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, जो एक्चुअल रेडियस है उससे बड़ा क्या मेजर कर रहे हो। और जो सोडियम से लेके क्लोरीन तक जो रेडियस मेजर कर रहे हो वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, मतलब जो रेडियस एक्चुअल लेना चाहिए उससे छोटा ले रहे हो, और आर्गन के केस में जो रेडियस लेना चाहिए उससे बड़ा ले रहे हो। ये बात हमें पता है, लेकिन फिर भी हम कोई ऐसा मेथड इंट्रोड्यूस करवा ही नहीं पा रहे अभी तक कि हम एक्चुअल रेडियस मेजर कर सकें। लेकिन वी नो दैट वी आर क्लोज टू द एक्चुअल रेडियस। ठीक है। तो जिसकी वजह से अगर मैं, अभी मैंने एक्सप्लेनेशन क्या दी कि डाउन अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। ठीक है, इस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से अगर मैं स्टैंड में आर्गन को रखने बैठ जाऊं ना, तो आर्गन का जो रेडियस होगा वो क्लोरीन से भी बड़ा होता है, तो सारी एक्सप्लेनेशन का कबाड़ा हो जाएगा। तो हमने कहा ए लेवल में कि आर्गन को हटा दो ट्रेंड से, आर्गन को पढ़ना ही नहीं। ठीक है। लेकिन आपको इसका रीजन पता होना चाहिए कि हम आर्गन को क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा। ट्रेंड को फॉलो क्यों नहीं कर रहा? क्या आर्गन का रेडियस वाकई में बड़ा होता है क्लोरीन से? नहीं बेटा,
Argon is not actually bigger in size as compared to chlorine, but the way we are measuring the radius of argon is wrong. And up till yet, we do not have the right technology to measure the correct atomic radius of argon. So far we know that if we were able to measure it accurately, it should be smaller than chlorine atom at any cost, because the explanation is clear na, atomic radius will decrease across the period because number of shells are same. So only nuclear pull is increasing. तो जब हम आर्गन का रेडियस एक्चुअली में मेजर कर लेंगे तो वो क्लोरीन से कम ही आएगा, ज्यादा नहीं आ सकता. बट अप टिल नाउ एज फार एज योर ए लेवल इज कंसर्न, हम आर्गन को यहाँ पे ट्रेंड में नहीं रखेंगे. ठीक है जी. तो दिस इज दी ट्रेंड फॉर द एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड. डाउन द ग्रुप वुड बी वेरी इजी, वो इंक्रीज होगा, ऊपर लाइन चली जाएगी यूं करके. ठीक है हसन, डन विद द ग्राफ. कोई क्वेश्चन किसी का यहाँ तक? नहीं है तो मैं पूछ लूंगा. चलो क्वेश्चन नंबर 1. Put the following elements in order of increasing atomic radius. Justify your answer. Magnesium, sulfur, and silicon. Which one has the smallest atomic radius? Magnesium is in period 3. Sulfur is also in period 3. Silicon is also in period 3. But if you see the order of period 3, we have sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, and argon. Sulfur comes after silicon. So it means sulfur's atomic radius must be smallest of all these three. So the smallest atomic radius, you have to arrange them in order of increasing atomic radius. So sulfur is the smallest. Then which one should be more bigger than sulfur? It should be silicon. And the biggest one should be magnesium. ठीक है, मैग्नीशियम का सबसे बड़ा होगा क्योंकि सोडियम है, फिर मैग्नीशियम छोटा, फिर एल्यूमिनियम और छोटा, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड सो ऑन. राइट. ऑप्शन बी आप लोग बता दें. मुश्किल वाला मैंने बता दिया, आसान वाला आप लोग बता दें. You have magnesium, potassium, and aluminum. Magnesium is in third period. It means it has 3 shells. Potassium is in fourth period. Aluminum is in third period. So there is no argument about potassium. Potassium के पास 4 number of shells हैं, तो potassium का atomic radius definitely सबसे बड़ा होगा इन तीनों में. Now you are left with magnesium and aluminum. Aluminum comes after magnesium in period 3. It means aluminum must be smaller than magnesium. And magnesium should be smaller than potassium because potassium is in period 4. It has 4 shells. Magnesium is 3 shells. Aluminum also have 3 shells, but aluminum atom is later in the period as compared to magnesium. Aluminum has 13 protons. Magnesium has 12 protons. The aluminum size must be smallest of all these 3. पार्ट सी का तो बता दो. चलो ये तो आसान है. सिलिकॉन, क्लोरीन एंड पोटेशियम. ये आप लोग बता दो. नहीं बताओगे तो मैं होमवर्क में छोड़ दूंगा, मैं करवाऊंगा नहीं. या जस्ट टेक अ मिनट एंड ट्राई टू सॉल्व इट ना. इतना मुश्किल थोड़ी है ये. सोचो पीरियोडिक टेबल सामने नहीं है, मोबाइल में खोल लो अगर नहीं है तो. ओके, द स्मॉलेस्ट वन मस्ट बी पोटेशियम इज इन पीरियड 4 ना, उसकी तो बात ही हटा दो. सिलिकॉन और क्लोरीन सेम पीरियड में. ठीक है. Chlorine comes after silicon, so it means chlorine must be the smallest, and then we have silicon. So chlorine, silicon, and potassium. Right. ठीक है जी. आयनिक रेडियस भी डिस्कस करके इसको रैप अप करें. थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो रही है क्लास, बट क्योंकि फिर ये पूरा ना ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस वाली कहानी खत्म हो जाएगी. तो नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, आयनाइजेशन एनर्जीज, वो पढ़ेंगे. तो ये भी ना बीच में बात छोड़ने से क्या फायदा, अभी खत्म करके खत्म ही करो उसको. अच्छा जी. डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज. ओके, वेरी गुड जुनैरा. डाउन द ग्रुप अगर हम देखें ना, तो ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप एज वेल एज आयनिक रेडियस डाउन द ग्रुप. ठीक है, दिस इज द ट्रेंड डाउन द ग्रुप. So if you see the trend down the group, and if let's take an example of group 1, instead if you take example of any group of the periodic table, the trend would be same.
The element which is at the top of the group will have the smallest atomic radius. The bottom one will have the largest atomic radius. तो लिथियम के बाद सोडियम का उससे बड़ा होगा, पोटेशियम का और बड़ा होगा, रुबिडियम का और बड़ा होगा, सीजियम का सबसे बड़ा होगा, बात खत्म। हाँ, जब इनके आइंस बनेंगे ना, मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ लिथियम आइन की, तो लिथियम आइन मस्ट बी स्मॉलर देन लिथियम एटम. Why? Because lithium atom has two shells. Lithium has only one shell. Similarly, sodium atom has three shells, and sodium ion has only two shells. Potassium ion has potassium atom has four shells. Potassium ion has one shell only. ठीक है, तो इनका जो है वो रिस्पेक्टिव एटम से अपना साइज तो छोटा ही होगा ना, लेकिन आपस में आइंस का साइज बड़ा होगा. ठीक है, इसी तरह कैटाइन की कैटाइंस के लिए, क्योंकि जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटाइन बनाता है तो शेल कम होता है. ठीक है, तो उनका जो आयन का साइज है अपने रिस्पेक्टिव एटम के साइज से छोटा होगा. लेकिन अगर हम एनाइन की बात करें तो एनाइन में अपोजिट हो जाएगा. अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, कि एनाइन में जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन लूज थोड़ी ना करेगा, फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से थोड़ी सी रिपल्जन बढ़ जाएगी, और जब थोड़ी सी रिपल्जन बढ़ जाएगी तो फ्लोराइड आयन का साइज जो होगा वो अपने फ्लोरीन एटम से बड़ा होगा. क्लोराइड आयन का साइज क्लोरीन एटम से बड़ा होगा, ब्रोमाइड आयन का साइज ब्रोमीन एटम से बड़ा होगा, आयोडाइड आयन का साइज आयोडीन एटम से बड़ा होगा. मतलब अगर मैं डाउन द ग्रुप देखूं तो उनके आपस में तो इंक्रीज होंगे डाउन द ग्रुप. फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन का, क्लोरीन से बड़ा आयोडीन का, आयोडीन से बड़ा ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन का. लेकिन इनके आयंस के अगर आपस में देखें तो उसका भी इंक्रीज ही होगा. लेकिन एटम और आयन का अगर कंपेयर करें तो फ्लोराइड आयन मस्ट हैव अ ग्रेटर साइज एज कंपेयर टू फ्लोरीन एटम. फ्लोराइड आयन must have a greater size as compared to chlorine atom, and so on. अब इनको कंबाइन करके देखें अक्रॉस द पीरियड. अगर मैं अक्रॉस द पीरियड चलूंगा तो पहले कैटाइंस आएंगे फिर एनाइंस आएंगे. मतलब अगर मैं अक्रॉस द पीरियड चल रहा हूं तो लेट्स से सोडियम एटम का साइज जो था वो ये था, मैग्नीशियम का ये था, एल्यूमिनियम था, फिर सिलिकॉन था, फिर वी हैड फास्फोरस, देन सल्फर एंड क्लोरीन. इनके एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड तो ये थे डिक्रीज हो रहे थे क्लोरीन तक, स्टार्टिंग फ्रॉम सोडियम एंडिंग एट क्लोरीन. आर्गन हम इंक्लूड नहीं कर रहे. लेकिन इनके जब आयनिक रेडियस के ट्रेंड बनाओगे तो सोडियम आयन का साइज जो होगा वो सोडियम एटम से छोटा होगा, मैग्नीशियम आयन का साइज जो होगा वो मैग्नीशियम एटम से छोटा होगा, एल्यूमिनियम आयन का साइज एल्यूमिनियम एटम से छोटा होगा, सिलिकॉन आयन का साइज सिलिकॉन एटम से छोटा होगा. लेकिन अच्छा, सिलिकॉन को जो है ना हम एज अ टू वे कंसीडर करते हैं, बिकॉज सिलिकॉन आयन नहीं बनाता, सिलिकॉन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है. लेकिन फॉर द सेक ऑफ ट्रेंड हमने क्या कहा कि सिलिकॉन का 4 पॉजिटिव आयन भी चेक कर लेते हैं और 4 नेगेटिव आयन भी चेक कर लेते हैं. सिलिकॉन जब नेगेटिवली चार्ज आयन बनाएगा तो वो अपने एटम से डेफिनेटली जो है वो साइज में बड़ा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो रिपल्जन बढ़ेगी और साइज बढ़ जाएगा. लेकिन अगर सिलिकॉन 4 पॉजिटिव आयन बनाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो शेल कम हो जाएंगे, तो सिलिकॉन पॉजिटिव आयन का साइज सिलिकॉन एटम से छोटा होगा. लेकिन फास्फोरस के लिए तो नेगेटिवली चार्ज आयन बनता है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो साइज उसके एटम से बड़ा होगा. इसी तरह सल्फर का जो एटम है उसका साइज छोटा होगा, उसके आयन का साइज बड़ा होगा, क्योंकि वो नेगेटिव आयन बनाता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो रिपल्जन बढ़ जाएगी. और क्लोराइड आयन का साइज क्लोरीन एटम से बड़ा होगा. कैटाइंस का छोटा होगा फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव एटम्स, एनाइंस का बड़ा होगा फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव एटम्स. गॉट इट? आगे बढ़े, मतलब खत्म करें, आगे नहीं बढ़ते. एक चीज और छोटी सी डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन बाद में कर लेंगे इसके ना. आयनिक रेडियस इन आइसोइलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल. हमने आइसोइलेक्ट्रॉनिक डिस्कस किया था ना एक क्वेश्चन करते वक्त. आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इफ एनी टू पार्टिकल्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर नोन एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक. राइट. अब नाइट्राइड आयन को अगर हम देखें, नाइट्राइड आयन हैज 2 shells. इलेक्ट्रॉन जब ये गेन कर लेगा तो इट हैज 2 shells. ऑक्साइड आयन आल्सो हैव 2 shells. सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तो ऑब्वियसली सेम ही होगी ना. राइट. इन सबके पास वी हैव 2 shells. सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे अब 10 हो गया. मैग्नीशियम आयन
After losing 2 electrons, the total number of electrons it is left with 10 electrons. Aluminum ion also have 10 electrons. So they have equal number of electrons. However, it means they have same number of shells and they have same shielding effect. But if you see their number of protons, nitride ion has 7 protons. Its nuclear charge is due to plus 7 protons. Oxide ion has 8 protons. Fluoride ion has 9 protons. The shielding effect is same, number of shell is same. Number of protons are increasing. अगर इफ वी कंपेयर नाइट्राइड एंड ऑक्साइड आयन तो उसका छोटा होगा. देखो बस ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहा है ना. सोडियम का 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, एल्यूमिनियम का 13 है और शील्डिंग वगैरह सब सेम है. और नंबर ऑफ शेल्स सेम है, शील्डिंग भी सेम है. ठीक है. बट न्यूक्लियर पुल या न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है एज प्रोटॉन नंबर इज इंक्रीजिंग. तो साइज क्या हो रहा है अल्टीमेटली? आयनिक साइज इज डिक्रीजिंग. गॉट माय पॉइंट? एनी क्वेश्चंस सो फार? कुछ पूछना है आप लोगों को? थैंक यू फॉर कीपिंग द क्लास दिस लॉन्ग एंड नॉट लीविंग. आई रियली अप्रिशिएट. बट बेटा एक चीज और, ओ लेवल, एएस और ए2 सबसे छोटा कोर्स और सबसे ज्यादा इजी जो कोर्स होता है ना एज ए टीचर, इफ यू आस्क मी, दैट्स ए2. ठीक है, क्योंकि वो कोर्स बहुत छोटा होता है. O level is lengthy, but AS level is most lengthy. ठीक है. तो AS में एक्चुअली हम वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स आपको देते हैं. क्वेश्चंस की वैरायटी होती है एमसीक्यूज की वजह से. तो मैं कोशिश करता हूं कि आपके पास जितना वाइड वैरायटी मैं आपको पढ़ा सकूं ना, और जितने वाइड नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको करा सकूं मैं करा दूं. ठीक है. फिर याद रखना, रिटेंशन रखना वो आपका काम होता है, तो आपको रिवीजन करना होता है. तो थोड़ा सा इसलिए एएस की क्लास में हमेशा एंड में रखता हूँ, ताकि अगर मुझे, आपकी भी वो लास्ट क्लास होती है, ताकि मुझे टाइम एक्सटेंड करना पड़े तो मैं कर लूँ. ठीक है. अगर आप मुझे ए2 में कहोगे ना, ए2 की क्लास में सबसे पहले रख दो. ठीक है. अगर वो मुझे पहले खत्म भी करनी पड़े ना, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत छोटा कोर्स है, हम जहन में जाके एंड कर देते हैं. ओ लेवल समझ जाता है. ओ लेवल में थोड़ा सा लेंदी तो होता है, बट डिपेंड्स के क्लास का पेस क्या है. एएस में बेटा याद रखना, टाइम थोड़ा सा कभी कभार हम एक्सटेंड कर देंगे, थोड़ा सा करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे. अगर आप फीडबैक दोगे, क्वेश्चंस अच्छे पूछोगे, ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, क्वेरीज लाओगे, तो हम लोग एक्सटेंड करेंगे उसको. ठीक है. अदरवाइज अगर आप लोग आपके एंड से पार्टिसिपेशन नहीं होगा क्लास का, अगर आप कोई क्वेश्चन ही नहीं करोगे, होमवर्क ही नहीं करोगे, कुछ पूछने वाला ही नहीं होगा, ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे, तो जो मैंने प्लान किया हुआ है मैं बस वही पढ़ा सकूंगा, मैं होमवर्क दूंगा बाकी. देन आई एक्सपेक्ट कि आप होमवर्क कंप्लीट करो एंड आस्क योर क्वेरीज. ठीक है. मैं घर आके चेक नहीं कर सकता आपका होमवर्क ना. हम वो फर्स्ट क्रिएट करेंगे वो लेवल वाला कि यू गाइस हैव टू टेक दी स्नैपशॉट्स एंड यू हैव टू सबमिट द पेपर. टेस्ट होगा अभी कमिंग वीक में, तो हमें टेस्ट अनाउंस करूंगा, तो हमें खुद ही पता लग जाएगा कि कौन पढ़ रहा है घर पे, कौन नहीं पढ़ रहा. ठीक है जी. चलो जा सकते हैं अभी आप लोग. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.